Guys, did you get the SMS of the class? Task का SMS आया था आप लोगों को?
Hey guys, what's up? A very good evening to all of you. So I see students joining in now. What happened, Dara Thod? I hope everything is fine.
So, guys, let's start with the concepts of economy, the top 15 concepts of economy. And this is the first class, so I'll be doing a series, but that series will not continue. I mean, we are doing part one today, and the part two would start from Sunday. So, class one, concepts of economy. This is presented by me, Ayush Sanghi. We will be doing the concepts of banking. All right. हम जो topic करने जा रहे हैं, they are concepts of banking. So, first concept number one, evolution of the banking sector in India. Are you ready, everyone? Tell me, Omkar, Ram Patel. Are you ready? How's the Josh? How's the Josh, everyone? How's the Josh? Very good. Everyone should give a thumbs up. Every single aspirant of this class should give a thumbs up. Every single aspirant. Every single aspirant. I want every single person to give me a thumbs up. And we will be understanding the evolution of banking in India. So, guys, these are some PT facts. ये PT facts हैं जो यहाँ पे हैं. बड़े interesting facts हैं. आपको बताएंगे. I'll be explaining to you how it's important. So, Bank of Hindustan was the bank which was established around 1770s, the first bank to be established in India. भारत का पहला बैंक सन 1770, Bank of Hindustan. क्या नाम था? Bank of Hindustan. First bank to be established by Indians was Awadh Commercial Bank in 1881. The Bank of Hindustan was established by non-Indians. This was first bank to be established by Indians was Awadh Commercial Bank in 1881. Punjab National Bank was second bank to be established by Indians. It was established in 1894. So 1770s, 1881 and 1894. It was established in this order. तो PNB सोच के देखिए कितना 100 साल से 130 almost 130 years old bank है. First bank established by East India Company was Presidency Bank of Bengal in 1806. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो 3 प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी, या मतलब बाद में ब्रिटिश क्राउन तो बाद में हुआ, पहले इट वाज कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 3 प्रेसिडेंसीज थी. प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी. तो अकॉर्डिंगली तीनों प्रेसिडेंसीज में एक बैंक बनाया गया, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल in 1806. Further, it established 2 more banks, Presidency Bank of Bombay in 1840, Presidency Bank of Madras in 1843. तो ये सारी चीजें हैं 1840, 1843, 1806. In 1921, which was more than 100 years later, or let's say 100 years back, अभी we are sitting in 2020, 100 साल पहले these presidency banks were merged into one, which was called the Imperial Bank of India. इसको तीनों को merge करके Imperial Bank of India बनाया गया था, which was restructured as SBI, State Bank of India, in 1955. तो आज जो हम बैंक SBI देख रहे हैं, ये बेसिकली ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 220 साल पुराना बैंक है, 215 साल पुराना बैंक है. That this bank was established through presidency of Bengal, Bombay and Madras, and then it merged into one, and further it was renamed as SBI, State Bank of India. In 1959, central government took over banks from states, princely states, government, and associated them with SBI. So 2 associate banks, SBI, State Bank of Indore and Saurashtra, have been merged. और उसके बाद जितने भी SBI के associates हैं, उन सबको merge किया गया है. All of them have been merged. So this is the evolution of the banking sector in India. Banking sector का evolution इस तरीके से देखा गया था, इस तरीके से किया गया था. Now we come to the second concept. Concept 2 is scheduled commercial banks. I repeat, the second concept is scheduled commercial banks. So, guys, the banking sector of India is governed by the Banking Regulation Act.
ये आपको पता होना चाहिए. You should be aware of the law. The name of the law is Banking Regulation Act of 1949. सन 1949 का कानून है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं उसे. उसके पहले जो लॉ आया था उसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. RBI, by the way, is a pre-independence institution. 1st of April 1935. Reserve Bank of India was established on the 1st of April 1935. And it was established, it is a statutory body. It was established via a statute by the same name, RBI Act of 1934. So RBI Act of 1934 with effect from 1st of April 1935, and later on Banking Regulation Act of 1949 regulates all the banks. तो जो बैंकिंग लॉ है उसमें शेड्यूल्स दे रखे हैं, उसको शेड्यूल्स में डिवाइड करा गया है. उसमें से सेकंड शेड्यूल है, the second schedule gives the eligibility criteria for any bank to be called as a scheduled bank. I repeat, जो दूसरा शेड्यूल है वो क्राइटेरिया देता है कि किस बैंक को हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कह सकते हैं. तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स which are included in the second schedule and which carry out the normal business of banking, such as accepting deposits, giving out loans and other banking services. कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें, लोन्स दें या बाकी की बैंकिंग सर्विसेज कैसे परफॉर्म करें. दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की मतलब देखिए, बैंकिंग की नॉर्मल एक्टिविटीज किस तरीके से रेगुलेट होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि बैंक को कौन सा लाइसेंस मिला है. अगर बैंक को एक फुल फ्लेजेड बैंक का लाइसेंस मिला है, कमर्शियल बैंक का, तो उसको एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. So there used to be 27 commercial banks which later have been merged. तो SBI के merge होते कम banks रह गए हैं. Now there are other banks which have been merged into State Bank of India. So you will give me the exact number कि आज की डेट में कितने public sector banks हैं. How many public sector banks do we have? This number will be given by you. ये number आप देंगे मुझे. So अब तो बहुत सारे banks के merger वगैरह देखे गए हैं. So you will bank consolidation देखा गया है. So that is something that you will tell. तो आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स. अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. वेरी गुड एवरीवन. 12. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी बैंक को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है, किसी भी बैंक को शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कमर्शियल बैंक्स व्हिच कंडक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. कमर्शियल बैंक्स जो कि बैंकिंग का बिजनेस कंडक्ट करते हैं भारत में, एंड व्हिच कौन सी चीजें हैं? हैव अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स. Paid up capital and reserves of an aggregate real and exchangeable value of not less than rupees 5 lakhs. तो real and exchangeable value of not less than rupees 5 lakhs. 5 लाख से कम की वैल्यू नहीं होनी चाहिए. real and exchangeable value मतलब कि paid up capital कम से कम इतना हो, 500,000 का. And satisfy the Reserve Bank of India that their affairs are not being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors. It should not be detrimental to the interest of the depositors. They are eligible for inclusion in the second schedule to the RBI Act of 1934. And when included are known as scheduled commercial banks. So they are included and they are called as scheduled commercial banks. इन banks को scheduled commercial bank कहा जाता है. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई? That they should have this minimum paid up capital and their affairs should be conducted in a manner which has been specified by RBI, क्योंकि RBI regulator है. तो scheduled bank enjoys two types of principal facilities. दो तरह की principal facilities देखी जाती हैं. It becomes eligible for debts or loans at the bank rate from the RBI and it automatically acquires the membership of clearing house. तो सबसे पहली चीज है that bank rate from RBI, eligible for debts or loans at the bank rate from RBI. It automatically acquires the membership of clearing house. Membership of clearing house का मतलब है checks. तो check कैसे clear होते हैं? आपने सुना होगा clearing house के बारे में. Checks are cleared through the clearing house. This is what is done. So scheduled commercial banks, ये चीज यहाँ पे देखी जाती है. तो commercial banks which conduct the business of banking in India and which have these two types of systems. Scheduled commercial banks, SCBs और scheduled commercial banks. तो ये चीजें हैं. Paid up capital, साक्षी गोयनका देखिए, कोई भी कंपनी, बैंक इज ऑल्सो अ कंपनी, किसी भी कंपनी का ना कैपिटल, एवरी कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल मतलब टोटल वैल्यू क्या है कंपनी की. तो वो टोटल वैल्यू किसी भी कंपनी की डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, राइट. सो पहला होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. मान लीजिए एक कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीस. इसमें से इशूड शेयर कैपिटल मतलब टोटल इस कंपनी के शेयर्स जो है वो लाख रुपए के हैं. इसमें से कितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं लोगों को? हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन इशूड? लेट्स से 40,000, 40,000 रुपए के शेयर्स इशू करे, इशूड शेयर कैपिटल.
इसके बाद है पेड अप, इसमें से कितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं। भाई मैंने तो बहुत सब इशू कर सकता था, मैं तो पूरी कंपनी इशू कर सकता हूँ। खरीदने वाले कितने हैं, लेट्स से 20,000 रुपए के खरीदने वाले हैं, तो ये इसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, कि कितने लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए पैसे दिए। हाउ मेनी पीपल हैव पेड अप द अमाउंट ऑब्वियसली फॉर द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, इट इज टर्म्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल। इट शुड बी 5 लाख रुपीज, और कुछ नहीं है, 5 लाख रुपए तो मजाक है एक तरीके से। So this is the second concept. Third is NBFC, Non-Banking Financial Corporation. NBFC, Non-Banking Financial Corporation. So non-banking financial corporation is a bank, but it does not have a banking license. तभी इसको NBFC कहा जाता है. It is a company registered under the Companies Act 1956, 2013. मतलब 2013 इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनीज एक्ट को रीराइट करा गया था 2013 में. सो नाउ द न्यू कंपनीज एक्ट इज फ्रॉम 2013. Engaged in the business of loans and advances, these acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities, etc. So all of these things are there. और ये सारी की सारी जैसे नॉर्मल कंपनीज में होते हैं, सिमिलरली बैंकिंग एक्टिविटी जैसे SBI लिमिटेड कंपनी, PNB लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, विजया, कैनरा, देना, अब तो ये सब कंसोलिडेट हो जाएंगे, लेकिन ये सब लिमिटेड कंपनीज थी. ऑल ऑफ दीज वर लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड 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 लिमिटेड, दीज वर लिमिटेड कंपनीज एंड दीज वर कंपनीज. सो कंपनी अगर है तो कंपनी को कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से चलना पड़ेगा. तो एनबीएफसी के क्या प्रोविजंस है, मतलब हम कैसे बोले कि ये एंटिटी जो है ये एनबीएफसी है या ये एंटिटी बैंक है. सो देयर हैव टू बी सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने पड़ेंगे. तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए ये आपको समझ में आएगा कि एनबीएफसी और एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनबीएफसी एंड अ नॉर्मल कमर्शियल बैंक? Non-banking financial corporation, NBFC, it can lend and make investments, and hence their activities are akin to that of banks. However, there are few differences as given below. देखिए NBFC भी बैंक की तरह ही फंक्शन करती है. उसके पास बैंकिंग लाइसेंस ना होने की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. There are certain restrictions. जैसे कि NBFC की आप चेकबुक नहीं देखोगे. NBFC is not allowed to be a part of the payment and the settlement system. So payment and settlement system is basically if I write a check in your name favoring a bank and you deposit that check in that bank, so you can withdraw the money or you can transfer the money into your account. So payment and settlement system, normal banks payment and settlement system का part होते हैं, NBFC नहीं हो सकता. This is the first point of difference. They do not form part of payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. ये वो checks draw नहीं कर सकते अपने ऊपर, या मतलब चेकबुक इशू नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर कोई चेक ड्रॉ नहीं कर सकता. Second is NBFC cannot accept demand deposits. देखिए किसी भी बैंक में 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं. एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, एंड द थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट. There are 3 types of deposits. Current deposit, current account deposit. Current account deposit is like at negligible rate of interest. So this basically big business houses open in order to have fast transactions, fast movement of money from one account to the other. So current account deposit. Demand deposit, तो डिमांड डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट आता है. ये बेसिकली सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट वो है जो हम सब अकाउंट खोलते हैं. मतलब आई एम प्रिज्यूमिंग आप सबका सेविंग्स अकाउंट होगा. So you all of you would have your savings account. Like I have savings account, and I mean most of 90% plus people would be having savings account because you get some rate of interest in savings account. And lastly, FD, fixed deposit. तो fixed deposit का हिसाब किताब यहाँ पे बैठता है. FD, fixed deposit है. तो fixed deposit में सबसे high rate of interest मिलता है, but you have to lock your funds for a certain period. एक period के लिए आपको अपने funds lock करने पड़ेंगे. So the point is that आप demand deposits, current account deposits and savings account deposit are demand deposits. ये demand deposits है. Current account deposit, savings account deposit, ये जो है ये demand deposits है. These are demand deposits. These are demand deposits. मतलब demand करोगे तो ये deposit मिलेगा. So these are those kind of deposits. तो demand deposits accept नहीं कर सकता NBFC. मतलब NBFC के आप अगर आप NBFC में account खोलोगे तो current account या savings account नहीं खुलता है वहाँ पे. These savings and current accounts cannot be opened. So they cannot accept demand deposits. This is the second point of difference. And the third point of difference is, I'm sorry, the third point of difference is that if the NBFC goes bankrupt by any chance, अगर NBFC bankrupt हो जाए तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. नॉर्मल अगर आपने अभी PMC बैंक का केस देखा हो, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का,
उसमें क्या था दैट DICGC, वो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल अकाउंट होल्डर्स. तो लेट्स से द अकाउंट they provide these facilities at 100,000 rupees, लाख रुपए तक की फैसिलिटी है, मतलब लाख रुपए तक के फंड जो है वो कवर्ड है. बहुत अच्छी बात है भाई, लाख रुपए तक के फंड्स अगर कवर्ड है तो 1 लाख रुपीस इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो. तो दिस DICGC provides as a part of commercial banks, not as a part of NBFCs. NBFCs को इंश्योर DICGC नहीं करता है. ये तीसरा डिफरेंस है. These are 3 points of difference between NBFC and normal banks. नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स और NBFCs के बीच में ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा. NBFC cannot accept demand deposits. They do not form part of payment and settlement system, and they are not insured under DICGC. So they are not insured under DICGC. This is something that you have to remember. 3 points of difference. NBFCs. Concept number 4. चौथा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का. सो कॉन्सेप्ट 4 इज डिफरेंशिएटेड बैंकिंग. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. बेनिफिट ये है सिद्धार्थ आशुतोष का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है. देखिए मतलब जो उनका क्वेश्चन काफी अच्छा है. दैट क्या फायदा है एनबीएफसी में? फायदा ये है कि बहुत सारे लोग अनबैंक्ड रह जाते हैं. बहुत सारे लोगों की डिमांड जो है एज अ कंज्यूमर, मतलब मैं कंज्यूमर है, मुझे नॉर्मल बैंक लोन नहीं दे रहा तो मुझे एनबीएफसी लोन दे देगा. एनबीएफसी की जो रीच है वो ऐसी जगहों पे है जहां पे नॉर्मल बैंक्स नहीं पहुंच सकते. इस वजह से एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है. और गवर्नमेंट जो है वो सारे बैंक्स को लाइसेंस भी नहीं दे सकती. गवर्नमेंट चाहती है बैंकिंग एक्टिविटी एक्सपैंड हो, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बैंक्स को हम लाइसेंस नहीं दे सकते. अरे क्यों लाइसेंस दें? इतने सारे बैंक को लाइसेंस दोगे तो बैंक्स कल को डिफॉल्ट कर गए तो फिर उनको इंश्योरेंस कौन देगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रांट लाइसेंसेस टू बैंक्स. हेंस द पैरेलल सिस्टम ऑफ बैंकिंग इंक्लूड्स एनबीएफसी, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो ये सारी चीजें हैं, राइट? So this is there. Next is differentiated banks. Differentiated banks. So this comes under this. No, Rathod, it is not covered under NABARD. It is coming under RBI only. RBI के उसमें आता है. So differentiated banks. There are 2 types of banking licenses that are granted by RBI. RBI द्वारा 2 तरह के banking licenses grant करे जाते हैं. One is universal banking license. Second is differentiated banking license. तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस इज टू कमर्शियल बैंक्स, जो आपके ये सब पीएनबी, एसबीआई, बंधन, ये सारे जो बैंक्स हैं ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस में आते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर. दे प्रोवाइड लोन्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कोई, अरे जो लोन प्रोवाइड करता है वो तो डिपेंड उस पे करेगा ना कि आप कुछ कोलैटरल लिया है या नहीं लिया है. इट विल डिपेंड ऑन दैट, अमन शुक्ला. So universal banking license or differentiated banking license. Universal banking license is normal license. Commercial banks are normal license है जो हम provide करते हैं. Differentiated banking license means that you are a differentiated, you are carrying out banking activities which are not the same, जो कि same नहीं है. Those kind of banking activities you are carrying out. So अगर आप ऐसी banking activities carry out कर रहे हो जो कि different है तो उसके लिए differentiated banking का concept है. डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में 2 चीजें आती हैं, आपको पता होना चाहिए उस बारे में. यू शुड नो अबाउट देम. द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कमिंग एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, वो क्या है? इट इज नोइंग अबाउट थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स. तो ये पेमेंट बैंक्स का पार्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है? पेमेंट बैंक्स होता है. और उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एसएफबीज. तो पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, सो दीज आर 2 बैंक्स व्हिच आर कमिंग अंडर दिस काइंड ऑफ एन एस्पेक्ट. ये इस एस्पेक्ट में इस तरीके से आता है, इस तरीके से लाया जाता है वेयर वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. सो डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर बैंक्स दैट सर्व द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक नीश ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब क्यों जरूरत पड़ती होगी, सोच के देखो. जब आपके यूनिवर्सल बैंक्स हैं तो हमें और बैंक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि और बैंक्स कुछ ऐसे लोगों को केटर करते होंगे जहां तक यूनिवर्सल बैंक्स नहीं पहुंच सकते. ये चीज हमारे लिए समझना जरूरी है. They would be reaching out to such people where we can't reach or where universal banks can't reach. So small finance banks, SFBs and payment banks are examples of differentiated banks in India. तो ये किस चीज के एग्जांपल है? डिफरेंशिएटेड बैंक्स के एग्जांपल्स हैं इन इंडिया. देखिए
तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक। ये पहले तरह का डिफरेंशिएटेड बैंक है, ये हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पेमेंट बैंक पढ़ेंगे। सो यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन, दैट यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट बैंक्स, अलग अलग किस्म के बैंक्स या अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले बैंक्स, जिसकी वजह से उनको डिफरेंशिएटेड बैंकिंग कहा जाता है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, क्या खास बात है इसकी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? Objectives of setting up of small finance banks will be to further financial inclusion. फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को फर्दर करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था कि नो फ्रिल्स अकाउंट एट द मोस्ट बेसिक लेवल, एट द लोएस्ट लेवल, दे ट्राइड टू इंक्लूड people in the financial sector, in the financial institutional part of the country, and they motivated people to open bank accounts. So that is something that they started through Jandan Yojana way back in 2014, and it became a Guinness World Record that maximum numbers of bank accounts, like almost 6-7 crore bank accounts were opened in less than 3 months, or probably in 2 months. 11-12 crore bank accounts were opened in less than 6 months. ये world record है। और अब तो बिल्कुल मतलब 30 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो अनबैंक्ड है, मतलब सोच के देखो कितने लोगों को बैंक अकाउंट्स, सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, provision of savings vehicle, that where do you have to save, supply of credit to SBUs, small business units, small and marginal farmers, MSME and other unorganized sector entities। तो इन सबको लोन देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खोले गए हैं। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, एसबीयूज, छोटे फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी 2 हेक्टेयर तक की जमीन होगी या जिनकी जमीन ही नहीं होगी, जो दूसरे की जमीन लीज करके उस पर खेती बाड़ी करते हैं। MSME and other unorganized sector through high technology, low cost operations. So this is the objective which is working, and these are called as small finance banks. ये SFB small finance banks कहलाते हैं। तो activities क्या हैं, that they are reaching out to those sections which are unorganized sector, and it is very very difficult to tap that section। तो वहां तक SFB ऑपरेट करता है। तो small finance banks shall primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposits accept करना, lending to unserved and underserved sections, including SBUs, small and marginal farmers, MSME, unorganized sector entities, ये सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली जो बड़े बैंक या यूनिवर्सल बैंक जिनको कवर नहीं करेगा, उनको SFBs कवर करेंगे। There will not be any restriction in the area of operations and small finance banks. कोई एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी छोटे से छोटे जिले में चले जाओ, वहां पे ही ऑपरेट करेंगे, दे विल ऑपरेट ओवर देयर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, तो पहला हुआ कॉन्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। द सेकंड कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग इज कॉल्ड एज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कहा जाता है इसे। तो पेमेंट बैंक क्या चीज है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट पेमेंट बैंक? So पेमेंट बैंक इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएटेड बैंक। पेमेंट बैंक भी एक डिफरेंशिएटेड बैंक है। इसकी क्या खास बात है? Objectives of setting up of payment bank will be to further financial inclusion. It will be to further financial inclusion by providing small savings account। अब पेमेंट बैंक क्या प्रोवाइड करता है, देखिए, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, payments or remittance services to migrant labor workforce, to people who are working in different cities and their families are living back in villages and rural areas. They have to transfer money back to their families. How do they do that? So they are called as migrant labor workforce. So payment bank would be operational in doing that. लो इनकम हाउसहोल्ड्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज को अगर पेमेंट्स भिजवानी है तो दे आर सेंट। तो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, पेमेंट रेमिटेंसेस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स,
ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक विल बी टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्दर किया जाता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ दिस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. तो देखिए इसके वो क्या है, इसका स्कोप क्या है. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, कि आप डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, यू आर एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स. तो देखिए डिमांड डिपॉजिट्स जो है एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा, बिकॉज पेमेंट बैंक बहुत छोटे स्तर पे ऑपरेट करता है, जहां पे अकाउंट होल्डर्स के पास मैक्सिमम 5,000 10,000 रुपए बैंक बैलेंस रहता होगा. तो डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू 100,000 रुपीज पर इंडिविजुअल कस्टमर. लाख रुपए तक का मैक्सिमम बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं. लाख रुपए का मैक्सिमम बैलेंस ये एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट को, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट. इशुएंस ऑफ एटीएम और डेबिट कार्ड्स. एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स कैन बी इशूड. क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट पेमेंट बैंक में नहीं है. पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स. Third is payments and remittance services through various channels. Payment services, remittance services through various channels. कई सारे channels के through payment services, remittance services are there, which is very good. This is something which can be provided. Payment services, remittance services. Banking correspondent of another bank. मतलब payment bank can act as a bank साथी to SBI. तो banking correspondent जिसे हिंदी में बैंक साथी कहा जाता है. Payment bank can act as a subordinate to SBI, कि SBI के behalf पे payment bank जो है अकाउंट खोल रहा है. ठीक है, तो उससे एसबीआई की भी रीच एक्सपैंड होती है, पेमेंट बैंक का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होता है. तो बीसी ऑफ अनदर बैंक सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन बीसीज. बीसीज का मतलब है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट. इस पे क्वेश्चन आ चुका है पीटी में, आई थिंक 2014 या 2015 में आया था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज आर ऑल दीज. Objective of setting up of payment banks will be no further financial inclusion. कि financial inclusion और ज्यादा नहीं होगी, कि small savings account provide करो, payment remittance services to migrant labor force or migrant workforce. This is one thing. Low income households, small businesses, other unorganized sector entities and users. Acceptance of deposits, लाख रुपए तक का balance. Issuance of ATM or debit cards, no credit card. Payment and remittance services through various channels. इसी के लिए basically payment bank खोला जाता है. Banking correspondent for another bank. And lastly, distribution of non-risk sharing simple financial products. मतलब बहुत ज्यादा risky products आप distribute ना करें, basic products distribute करें. These are the things which are there as a part of payment bank. So payment bank licenses have been granted. इनको license grant किया गया है. And licenses have been granted in this very fashion. इसी तरीके से licenses grant किए गए हैं कि भाई जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, आपका एयरटेल का पेमेंट बैंक हो गया, all these have been granted these licenses. आपने देखा होगा कि इनके पास लाइसेंसेस है ना जी. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एवरीवन प्लीज गिव अ थम्स अप. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेसल 3 नॉर्म्स. सच बताइएगा मुझे दिल से, आप में से कितनों को बेसल के बारे में नहीं पता है? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो अबाउट बेसल? ज्योग्राफी की एटलस खोलो और ढूंढो बेसल कहां है. सो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में एक शहर है बेसल. लेट 1980s 1987 में बेसल में पहली मीटिंग हुई थी, जहां पे हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिले थे टू डिस्कस हाउ टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ योर ओन कंट्री. उसको स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करी जाए. तो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड. It is the headquarters of BIS, Bureau of International Settlements. BIS के headquarters है, which fosters cooperation among central banks
जितने भी सेंट्रल बैंक है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, मतलब सारे सेंट्रल बैंक के जितने गवर्नर्स या चेयरपर्सन या जो भी बोलते हैं उनकी कंट्री में हेड्स, वो सारे मिलते हैं विद द कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस। तो बैंकिंग रेगुलेशंस कॉमन होने चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ एम करो। Every 2 months, BIS hosts a meeting of the governor and senior officials of central banks of member countries. So currently there are many member countries in the committee. Basel guidelines refer to broad supervisory standards and formulated by this group of central banks, called the Basel Committee on Banking Supervision. Committee का नाम है BCBS. The set of agreement by BCBS, which mainly focuses on risks to banks and financial system, are called as Basel Accord. Whatever they agree on is called as Basel Accord. और उनकी गाइडलाइंस होती है. The guidelines are 1, 2 and 3. The purpose of the accord is to ensure that financial institutions have enough capital on account to meet obligations and absorb unexpected losses. देखिए आप खुद देख रहे हो, मतलब अब तो चीज छुपी नहीं है, बहुत ओपन में है. The kind of bank scams that have been happening, right? PMC बैंक का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके पहले नीरव मोदी का इतना घोटाला हुआ, किंगफिशर का इतना घोटाला हुआ. ये वो है जो आप लोगों को पता है, पिछले 7-8 साल की चीजें जो आप लोग जानते हैं. इसके सिवा there have been more than 800 defaults. There have been more than 800 defaults and these are big ticket defaults. Big ticket means that the money involved is thousands of crores. 10 लाख करोड़ से ऊपर के NPAs हैं, 10 लाख करोड़ से ऊपर के NPAs हैं. वित्त मंत्री हमारे शब्दावली देखिए, look at the use of words. What the finance ministry says is that these loans have not been written off. These loans have been put in bad debts. Bad debts में डाले गए हैं. 10 लाख करोड़ का डिफॉल्ट है यार, क्या रिकवर कर लोगे 10 लाख करोड़ में? 10 लाख करोड़ में अगर 50,000 भी रिकवर करोगे तो 50,000 करोड़ भी रिकवर करोगे 5% होता है. what क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? So the point is that what we are trying to do is that this high level of NPA, non-performing assets, ये सारी की सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है. It is highly important for us to understand, and it is highly important for the banking sector to safeguard itself from any prospective default. देखिए ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट नहीं हो सकता. आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो फॉर अ प्रोस्पेक्टिव डिफॉल्ट, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो फॉर दैट अ कॉन्सेप्ट वाज इवॉल्व्ड एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट? CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशियो. मतलब अगर मैंने 100 करोड़ का लोन दिया है तो उसमें से कितना अमाउंट रिस्की है? 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, कितना रिस्की है? उतने का आप पहले से प्रोविजन बना के रखें. तो अगर मुझे लगता है कि मेरा 10% कैपिटल जो है रिस्की है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 10%, इट मींस दैट 10% इज रिस्की. सो आउट ऑफ द टोटल कैपिटल लेंट आई शुड बी मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ 10%. 10% का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा. तो ये चीज डिसाइड होती आ रही है फर्स्ट बेसल गाइडलाइन से. तो बेसल 1 was introduced in 1988, Basel 2 was introduced in 98-99, Basel 3 was introduced after the global financial meltdown of 2008, global financial crisis which started from the US. It was introduced after that in 2009, which India has till date not been able to adopt. Basel 3 को हम अडॉप्ट करने की बात 6 साल से कर रहे हैं, आज तक नहीं कर पाए. तो इनफैक्ट बेसल 3 को अडॉप्ट करने के लिए जितना बैंक कंसोलिडेशन देख रहे हो ना, यू आर लुकिंग एट बैंक कंसोलिडेशन, जितने भी बैंक्स कंसोलिडेट करे जा रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन ये भी है, बेसल 3 के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इसको अप्लाई करना है. इट इज एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अकॉर्ड दैट इंट्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ रिफॉर्म्स डिजाइन्ड टू इंप्रूव द रेगुलेशन, सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट विद इन द बैंकिंग सेक्टर. Regulation, supervision and risk management within the banking sector. It was published in 2009 largely in response to global financial crisis. तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में 2009 में ये चीज पब्लिश करी गई बेसल 3 की. तो मैंने आपको यही बताया भी, बेसल 3 इस साल आया था. इट बिल्ड्स ऑन बेसल 1 and 2 and seeks to improve the banking sector's ability to deal with financial stress, improve risk management and strengthen the bank's transparency. The financial stress, risk management and bank's transparency. A focus of Basel 3 is to foster greater resilience at the individual bank level in order to reduce the risk of system-wide shocks. तो बिल्कुल सही बात है. सिस्टम वाइड शॉक्स मतलब कोई अगर डिफॉल्ट करता हो तो आप उससे किस तरीके से डील करोगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टम वाइड शॉक्स. हाउ वुड यू डू इट, कैसे करें? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो वो बेसल 3 सिखाता है. तो देखिए बेसल 3 की क्या गाइडलाइंस है, हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको समझना बहुत जरूरी है. Basel 3 introduced tighter capital requirements in comparison to Basel 1 and 2. तो Basel 1 and 2 के comparison में capital requirements are tighter,
which basically means that it comes as a part of this, where it introduced tighter capital requirements. One, two, Basel 3 left the guidelines for risk-weighted assets. मैंने आपको यही चीज बोली थी, RWA largely unchanged from Basel 2. तो risk-weighted assets means that how many assets are risky. अगर मेरे 10 लोन्स है, 10 करोड़ के, 100 करोड़ का लोन है, उसमें से कितना लोन रिस्की है. तो risk-weighted assets ये Basel 2 में भी था, Basel 3 में भी है. Very important. Basel 3 introduced new requirements with respect to regulatory capital for large banks to cushion against cyclical changes on their balance sheets. जितने भी उनके बैलेंस शीट्स में चेंजेस है वो सारे आ जाते हैं. तो रेस्पेक्ट रेगुलेटरी कैपिटल फॉर लार्ज बैंक्स टू कुशन अगेंस्ट साइक्लिकल चेंजेस ऑफ देयर बैलेंस शीट्स. Basel 3. It introduced leverage and liquidity requirements to safeguard against excessive borrowings and ensure that banks have sufficient liquidity during financial stress. बैंक्स की अच्छी खासी लिक्विडिटी है ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस. ये चीज बहुत जरूरी है कि बैंक्स की लिक्विडिटी हो. जब हम लोग बैंक्स की लिक्विडिटी की बात करते हैं, मतलब बैंक्स शुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी टू बी एबल to understand, to be able to apply, to be able to do stuff. That is something which is highly important. ये बहुत जरूरी है. So Basel 3 guidelines have this kind of an understanding and have this kind of an application. तो Basel 3 guidelines yes ये कहती है. So point number C क्या कहता है, दोबारा सुन लीजिए. Point number C is introduce new requirements with respect to regulatory capital for large banks to cushion against cyclical changes on their balance sheets. कि आप cushion करोगे against cyclical changes on their balance sheets, तो regulatory capital for large banks. तो large banks के लिए regulatory capital है to cushion against cyclical changes on their balance sheets, कि balance sheets में cyclical changes होने चाहिए. और cyclical changes का मतलब ये है कि if there are any kind of defaults, उस default से आप अपने आप को कैसे बचाते हैं. How do you save yourself from a default? And on that basis, you have to understand yourself. So banks to cushion against cyclical changes on their balance sheets. So बिल्कुल ठीक बात है, ये Basel 3 guidelines है. That is there. उसके बाद 8वां कॉन्सेप्ट है NPS का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का. NPS होते क्या है? What are NPS? तो आप लोगों को ये बात आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी. Yes, Aman Shukla, it's only geographical connection. It was a sarcastic way of saying that map में ढूंढिए. So basically, NPAs, non-performing assets. What are non-performing assets? Non-performing assets क्या होते हैं? Non-performing assets, NPAs. आप सबसे पहले समझो assets क्या होते हैं, फिर आपको non-performing समझ में आएगा. What are assets? किसी भी बैंक के लिए एसेट क्या होता है? टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, यूपीएस, पंखा, एसी, गाड़ी, ये सब एसेट्स होते हैं किसी भी बैंक के लिए. बैंक का सबसे बड़ा एसेट होता है द अमाउंट ऑफ लोन इट एक्सटेंड्स, जो वो पैसा एक्सटेंड करता है लोन के तौर पे. ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इट एक्सटेंड्स, द लोन इट एक्सटेंड्स, whatever money it has extended, it is something which is forming this part. So that is considered to be an asset, right? Asset is a loan. The loan that is extended by bank is considered to be an asset. तो लोन जब तक बैंक ने लोन दिया, अब बैंक को लोन रिकवर हो रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, मतलब रिकवरी हो रही है इंस्टॉलमेंट्स की, ब्याज की, इंटरेस्ट की, सब कुछ हो रहा है. जब तक वो रिकवर हो रहा है तब तक कहा जाता है परफॉर्मिंग एसेट. दैट द एसेट इज परफॉर्मिंग फॉर मी, आई एम गेटिंग माय रिटर्न ऑन माय एसेट, मुझे रिटर्न मिल रहा है अपने एसेट पे. वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है कि जब वो एसेट मेरे लिए परफॉर्म करना बंद कर जाए, तो when that asset stops performing for me, it is considered to be what? It is considered to be a non-performing asset. It's as simple as that. बहुत बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या है. It is considered to be non-performing, that I'm not getting any return. So when loans stop coming your, when installments stop coming your way, when you are not able to recover your loan amount, your installment amount, then that is converted into non-performing asset. अब सवाल ये उठता है that when do you call a loan? आप कब किसी भी लोन को आप कब एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं? मतलब मैं कैसे बोल दूं, जैसे मुझे आज पैसे मिलने वाले थे, आज नहीं मिले, तो आज रात को पैसे नहीं मिले, कल सुबह मैं उसे एनपीए में डाल दूं? शुड आई से दैट मुझे एनपीए हो गया है, दैट देयर हैज आई हैव सफर्ड एन एनपीए? No, that is not the case. I mean, you give a certain time frame to declare an asset or to declare a loan as a non-performing asset. All right. So it is on the basis of that extra time which has been given for recovery or for the payment, that the payment time that is given to a debtor.
So assets of a bank are classified in terms of its repayment status. Those assets which don't perform, that is, don't bring any return, are called as non-performing assets or bad loans. NPAs or bad loans, banks' assets are the loans and advances given to customers. Bank assets kya hai? They are loans and advances given to customers. If customers don't pay either interest or part or principal or both, ना या तो सूद नहीं दिया है या मुत्तल नहीं दिया है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और बोथ, लोन्स टर्न इनटू बैड लोन, उसको बैड लोन कहा जाता है. According to Reserve Bank of India, loan on which interest or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days, 90 दिन से ऊपर अगर कोई इंस्टॉलमेंट आपको रिकवर नहीं हुआ, मतलब देखिए अगर आज मान लीजिए आपने 100 का लोन लिया है 2020 में एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो 10% ब्याज पे आपने पैसा उठाया है, वो आपको 10 साल में रीपे करना है. यू हैव टू रीपे दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. अगले 10 साल में रीपे करना है. तो एवरी ईयर यू आर पेइंग 10%, 10%, 10%. तो 10 रुपए प्लस 10% इंटरेस्ट, 11 रुपए में हर साल दे रहा हूं. तो मैंने पहले 3 साल दिए, 2021, 22, 23. 24 में आई वाजंट एबल टू पे, माय बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल. सो 24 में आई हैव डिफॉल्टेड ऑन द लोन, मेरा लोन पे डिफॉल्ट हो गया. 90 डेज का पीरियड ग्रेस मिलता है. अगर 90 डेज तक भी मैंने नहीं चुकाया, मतलब ड्यू डेट के 90 डेज के बाद तक, 3 महीने के बाद तक, तो अगर 1 जनवरी को ड्यू था एंड इफ आई एम नॉट एबल टू रीपे अप टिल 30th और 31st ऑफ मार्च, 1 अप्रैल को उस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लोन को एनपीए में डाल दिया जाएगा, बैड डेट में डाल दिया जाएगा. फ्रॉम द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वार्टर इट विल बी पुट, क्योंकि 90 डेज 3 महीने का पीरियड होता है, वो अपने आप ही एक क्वार्टर हो जाता है. इज कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है. तो 90 दिन के पीरियड के बाद उस लोन के अमाउंट को, जो बचा हुआ लोन का अमाउंट है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाला जाता है. दैट ये एसेट हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 2-3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. ध्यान से सुनना मेरी बात. नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 2-3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं. The first terminology is that it is considered to be a substandard asset. Substandard asset. मतलब अगर मुझे 90 दिन रिकवर नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूं, नुकसान हो गया, खत्म, छोड़ो, हटाओ उसे. नहीं ना, आप वेट करोगे, आप अभी भी वेट करोगे, आप कोलैटरल ऑक्शन करोगे, जो गिरवी रखा था उसे आप बेचने की कोशिश करोगे, ये सब चीजों की कोशिश करोगे. यू विल ट्राई फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज प्रीटी नेचुरल. सो यू हैव ट्राइड फॉर ऑल दीज थिंग्स. आपने इन सब चीजों के लिए ट्राई करा. So we are talking about collateral securities. तो ये हुआ 90 डेज का पीरियड. जो 90 डेज का पीरियड है वो इस बेसिस पे ऑपरेट करता है. 90 दिन के बाद उसी एसेट को सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है. स्टैंडर्ड का मतलब रिकवरी हो रही है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सो इट इज परफॉर्मिंग फॉर मी. नाउ द एसेट इज कॉल्ड एज अ सब स्टैंडर्ड एसेट. Now that asset is not performing for me in the sense that I have not been able to recover the last installment. ठीक है, मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं रिकवर हुआ. सब स्टैंडर्ड एसेट. नाउ इफ इट कंटिन्यूज टू बी अ सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर अ सर्टेन पीरियड, अगले 1 साल अगर वो सब स्टैंडर्ड ही रहता है, मतलब 90 दिन तो खत्म हो गए, उसके बाद उसे मैंने सब स्टैंडर्ड बोला. अब सब स्टैंडर्ड रहता है वो 1 साल, अगर 1 साल और रिकवरी नहीं होती है मुझे, तब उसको बैड डेट, बैड एसेट या बैड लोन कहा जाएगा. कि मतलब अब इस लोन का रिकवर होना मुश्किल है. ठीक है, उसको एक बैड डेट या बैड लोन कहा जाएगा कि अब इस लोन का रिकवर होना मुश्किल है. और वो भी अगर 1 साल तक चलता रहा, 1 साल के बाद उस लोन को आप राइट ऑफ कर दोगे, उसे बैलेंस शीट से हटा दोगे कि अब तो ये रिकवर हो ही नहीं सकता, अब ये नुकसान हमें कहीं और से पूरा करना पड़ेगा. सो स्टैंडर्ड एसेट, सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट. स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस. स्टैंडर्ड मतलब सब ठीक है, सबस्टैंडर्ड मतलब 3 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं आई, हो सकता है आगे आ जाए, 1 साल तक टाइम दिया जाता है. सबस्टैंडर्ड एसेट. डाउटफुल एसेट कि नहीं आएगा, मतलब डाउट है आने में. लॉस एसेट कि नहीं आया, हमने उसे हटा दिया. तो मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं आया, आप भूल जाओ, आप अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो, उसे कहा जाता है लॉस एसेट. तो लॉस एसेट इज रिटन ऑफ, इट इज कॉल्ड एज रिटन ऑफ. दिवालिया इज लॉस. सो दीज आर नॉर्मल लोन्स. नॉर्मल लोन्स इस बेसिस पे होते हैं. दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चरल लोन्स होते हैं, उसमें एनपीए का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई किया जाता है. However, in terms of farm loans, the NPA is defined as under the short duration crop agriculture loans such as rice, jawar, bajra. If the loan is not paid for 2 crop seasons, it would be termed as an NPA. The loan is not paid for 2 crop seasons, it would be termed as an NPA. इसको NPA कहा जाता है कि अगर
अगर कोई आपने चीज उगाई, ठीक है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आपने उगाया, और आपने दो, यू हैवंट पेड इट फॉर 2 क्रॉप सीजंस, यू हैव नॉट बीन एबल टू पे इट फॉर 2 क्रॉप सीजंस, इट वुड बी टर्म्ड एज एन एनपीए, उसको एनपीए कहा जाएगा. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, the above would be 1 crop season from the due date, उसको 1 crop season from the due date, then it is seen in this particular fashion. तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है वो. The above would be 1 crop season from the due date, ड्यू डेट से एक क्रॉप सीजन तक. तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप अगर एक क्रॉप सीजन रिकवर नहीं हुआ तो उसे एनपीए में डालते हैं. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर 2 क्रॉप सीजन रिकवर नहीं हुआ तब उसे एनपीए में डालते हैं. सो दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आप लोग समझ पा रहे हैं? यस. The next concept is, or the concept on this is, Insolvency and Bankruptcy Code 2015. Highlights. We are talking about IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. जब हम IBC की बात करते हैं, when we talk about IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, are two specific terms, insolvency और bankruptcy. दो अलग अलग terms हैं. What do these terms, क्या मतलब होता है इन terms का? ये समझना बहुत जरूरी है. This is highly important for us to understand. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. आप समझिए मेरी बात कि इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है. इंसॉल्वेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे. मतलब एक इंसान जो है वो उसको आपको पैसे चुकाने थे, बट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे फॉर वॉट एवर रीजन, जो मर्जी रीजन हो, बट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे. सो वी कॉल दैट पर्सन इंसॉल्वेंट. हम उस बंदे को, हम उस डेटर को इंसॉल्वेंट कहते हैं, दैट दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब कतई ये नहीं होता, इंसॉल्वेंट डज नॉट मीन दैट द पर्सन विल नेवर बी एबल टू पे. वी नो दैट दिस पर्सन हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस इंस्टॉलमेंट. ठीक है, वी डोंट अज्यूम द वर्स्ट, we just assume that this person is not able to pay right now. भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो that is, so I will be called as an insolvent. A person is called as an insolvent if that person is not able to pay right now. Insolvency. If that person is not able to pay for a prolonged period of time, then that person has to file for bankruptcy, कि अब वो पैसे दे ही नहीं पाएगा, अपनी कंपनी को bankrupt डिक्लेयर करो. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015. तो क्या था कि पहले जमाने में जब एनपीएस होते थे, 2015 से पहले जब एनपीएस होते थे, तो उस टाइम पे पता ही नहीं चलता था. अरे भाई सोच के देखो, नीरव मोदी स्कैम 10,000 करोड़ का स्कैम हो गया, क्या ओवरनाइट हुआ होगा? मतलब आज पीएनबी की रिपोर्ट आई कि ये स्कैम चल रहा है, और कल तक मतलब आप डिस्क्लोज हुआ 10,000 करोड़ का स्कैम, और मोदी जी जो है लंदन में बैठे हुए हैं. आप सोच के देखो, वो स्कैम क्या आज हुआ होगा? वो स्कैम 10 साल से चल रहा होगा. आपको दिखा नहीं, आंखें बंद करके बैठे थे, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे डायरेक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं. क्या उस टाइम पे यू हैड योर ब्लाइंडर्स ऑन? सो व्हाई, व्हाट वर यू डूइंग? क्या कर रहे थे बैंक में बैठे बैठे? तुम्हारा काम क्या है? इतना बड़ा लोन तो तुम चेक कर नहीं पाए. जरा सा मैं आज एजुकेशन लोन देने जाऊं 5 लाख रुपए का, तो मेरा पूरा घर गिरवी रखवा लेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और वहां पे वो आदमी इतना बड़ा लोन लेके रफू चक्कर हो गया, एंड proper nonsense of the highest authority when we talk about the any bank for that matter. In this case it was the Punjab National Bank. So when we talk about this, कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि डिफॉल्ट हो रहा है इतना. तो when we talk about insolvency and bankruptcy code 2015, तो insolvency and bankruptcy के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो बात ये होती है that insolvency, bankruptcy, तो आप सबसे पहले रियलाइज करो, और अगर कोई इंसॉल्वेंट है, मतलब अगर किसी ने आज पहले इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करा है, तो उसी टाइम उसे इंसॉल्वेंट बोल दो, और उसी टाइम उसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भेज दो. तो दिस बॉडी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, हैज बीन क्रिएटेड अंडर दिस कोड. इसी कोड में बनाया गया है. सो दिस इज दैट बॉडी विच बेसिकली वेयर सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लोन्स कैन हैपन. जैसे कि मतलब आपको एक लोन 10 साल में रीपे करना था, अब वो टाइम चेंज करके 20 साल कर सकते हैं, तो वो सब बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, सेटलमेंट हो सकता है बीच में. तो these things can happen. तो the code creates time bound processes for insolvency resolution of companies and individuals. Companies और individuals में वो insolvency resolution एक time bound process होता है. These processes will be completed within 180 days. 6 महीने के अंदर अंदर ये process जो है complete किया जाएगा. This process will be completed in a process of 180 days. अच्छा जी, 180 days का मतलब है 6 महीने. If insolvency cannot be resolved, the assets of the borrowers may be sold to repay creditors. Assets बेचे जाएंगे, प्रॉपर्टी बेची जाएगी.
किंगफिशर विला बेचा गया, पीनट्स, मूंगफली से भी छोटा दाना रिकवर हुआ होगा जितने पे डिफॉल्ट हुआ था. This is one thing, right? Second is the resolution process will be conducted by licensed insolvency professionals. जो licensed insolvency professionals है वो conduct करेंगे. These IPs will be members of insolvency professional agencies, IPAs. IPAs will also furnish performance bonds equal to the assets of a company under insolvency resolution. तो insolvency resolution में ये चीज हो रही है. Information utilities will be established to collect, collate and disseminate financial information to facilitate insolvency resolution. तो disseminate करना है financial information to facilitate insolvency resolution. Very good. Information utilities. NCLT, National Company Law Tribunal, will adjudicate insolvency resolution for companies. Insolvency resolution companies के लिए आप adjudicate करें NCLT. मतलब अगर कोई भी केस है तो आप वो ट्राइब्यूनल के पास लेके जाएं, NCLT, National Company Law Tribunal. तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है तो बैंक उसे NCLT लेके जाएगा, अगर इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट करा है तो उसे DRT लेकर जाएगा. This is a PT fact. ये PT एग्जाम के लिए फैक्ट है. NCLT is for companies, DRT is for debt recovery tribunals. DRT is for debt recovery tribunals. It will adjudicate insolvency resolution for individuals. बिल्कुल सही बात है. Insolvency resolution for individuals would be done. तो so this is there. तो क्या क्या पढ़ा हमने? First is insolvency professional adjudicate करेगा. Information utilities बनाई जाएंगी. NCLT, DRT tribunals बनाए जाएंगे. Insolvency regulator. The code establishes the Insolvency and Bankruptcy Board of India. ये देख लीजिए, ये बेसिकली जुडिकेचर है to oversee the insolvency proceedings. तो बेसिकली देखना कि IBC कोड ठीक से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए बोर्ड IBBI बनाया गया है in the country and regulate the entities registered under it. The board will have 10 members, including representatives from the Ministries of Finance and Law and the RBI. So Ministries of Finance and Law and the RBI, these are the insolvency regulators. ये सब इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर्स हैं. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रेगुलेटर्स. एंड द लास्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIB. सो व्हेन वी टॉक अबाउट DSIB, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये खिताब है, टाइटल है जो कि बहुत बड़े बैंक्स को दिया जाता है, द बैंक्स व्हिच आर बिग इन साइज. उन बैंक्स को DSIB कहा जाता है, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक. डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक मींस दैट दिस बैंक, ये जो बैंक है सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये बैंक अगर डिफॉल्ट करता है तो कंट्री की इकोनॉमी हिल जाएगी, क्योंकि इस बैंक की जो एसेट्स है दे आर एक्सीडिंग 2% ऑफ द GDP ऑफ दिस कंट्री. हमारी पूरी कंट्री की GDP के 2% से ज्यादा एक बैंक के एसेट्स हैं. तो ऐसा कौन सा बैंक है? 2018 में ऐसा बैंक डिक्लेयर किया गया था, उसका नाम था HDFC बैंक. सो RBI declared HDFC Bank Limited to be a DSIB, domestic systemically important bank. The other two such banks are SBI and ICICI Limited. तो क्या चीज है ये? DSIB means that the bank is too big to fail. मतलब अगर ये बैंक फेल हो गया तो आपकी इकोनॉमी हिल सकती है. It's too big to fail. बहुत बड़ा बैंक है. According to RBI, some banks become systemically important due to the size, cross-jurisdictional activities, complexity, and lack of substitute and interconnection. So banks whose assets exceed 2% of GDP are considered a part of this group. The RBI stated that should such a bank fail, there would be significant disruption to the essential services they provide to the banking system and the overall economy. So essential services they provide to the banking system and the overall economy. The too big to fail tag, it indicates that in case of distress, the government is expected to support these banks. तो डिस्ट्रेस के टाइम में मतलब इस बैंक को फेल होने से बचाने की ड्यूटी सरकार की है, भारत सरकार की है. ड्यू टू दिस परसेप्शन, व्हाट इज हैपनिंग? दीज बैंक्स एंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस इन फंडिंग. इनको फंडिंग के कुछ फायदे मिलते हैं. इट ऑल्सो मीन्स दैट दीज बैंक्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स रिगार्डिंग सिस्टेमिक रिस्क एंड मॉरल हैजर्ड इश्यूज. मॉरल हैजर्ड इश्यूज है, सिस्टेमिक रिस्क है, मतलब बेसिकली किसी भी तरह का रिस्क है, इस बैंक को उस रिस्क को पूरा करना आना चाहिए. द बैंक शुड बी एबल टू cover those risks, or rather the government should help the banks in covering those risks if possible. So this is something which has been given by the government. Government द्वारा ये चीज करी गई है या दी गई है. So guys, this PDF just 10 concepts हमारे cover हुए आज. We have covered 10 concepts. और ये जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम हैंडल से. The Telegram handle link has been pinned in the chat box. चैट बॉक्स में आप टेलीग्राम हैंडल का लिंक है, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो
और उसके सिवा आप मेरी दूसरी स्पेशल क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो, विच इज ड्यू टू हैपन टुमारो मॉर्निंग एट 9 o'clock. कल सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे. बड़ा अच्छा टॉपिक है. It's a very good topic. It's a contemporary issue. You should definitely attend that class. And do register or do subscribe to my Telegram handle for the latest updates with respect to the examination, for my MCQ digest, and for the information of my future batches and the special classes. तो स्पेशल क्लास के लिए रजिस्टर करें, उसका लिंक यहाँ पे है. दिस इज द लिंक टू द स्पेशल क्लास. दिस इज ड्यू टू हैपन टुमारो मॉर्निंग एट 9 o'clock. I am coming up with my courses on Indian economy, Indian polity and current affairs exclusively for prelims 2020. Do register for my classes on unacademy.com/plus. If you consider registering for my batch, use my code AYU10 as the subscription or referral code. You will be eligible to get a 10% off on your subscription amount. So my code is AYU10, IU10. So use my code in order to get a 10% off on your subscription amount. So guys, that would be it for today. Thank you so much. My name is Ayush Sanghi and I bid you goodbye. And let me also give you one information. मैं आपको एक information और दे दूं कि इस वक्त आप ये समझ लीजिए that 8.33% of 2020 is already over. 8% 2020 is already over. तो आप ये देखिए what you have to make of 2020. 8% time is gone. January is gone, खत्म हो गया है. February वैसे भी आधा महीना होता है. तो अब आप देखो कि आपको एग्जाम क्लियर करना है and how you have to clear the exam. You have to work very, very hard. Make sure that you start on your preparation soon in a serious fashion. Bye everyone. Take care. All the best.